Hello, listening friends. नमस्कार श्रोता मित्रों, We welcome you once again to this broadcast. इस प्रसारण में हम एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। For those of you who are just joining us for the first time, आप में से जो पहली बार हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, we are in the second half of a message from the book of Acts, chapter 3. हम प्रेरितों के काम की पुस्तक 3 अध्याय में से चल रहे संदेश के दूसरे भाग में हैं। If you have your Bibles, please turn to Acts, chapter 3, verses 1 to 26. यदि आपके पास बाइबल है तो कृपया प्रेरितों के काम 3 अध्याय के 1 से 26 पदों पर खोलिए। In this passage, we see that Peter and John confront a beggar who is crippled and hopeless. इस भाग में हम देखते हैं कि पतरस और यूहन्ना का सामना एक भिखारी से होता है जो लंगड़ा है और मायूस है। Peter says to the man in verse 6, I have no silver or gold. 6 पद में पतरस उस मनुष्य से कहता है कि सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, But in the name of Jesus, rise up. परंतु यीशु के नाम से उठ। The man's healing was the first miracle of the apostles after Christ's ascension. इस मनुष्य की चंगाई का आश्चर्य कर्म मसीह के उठाए जाने के बाद प्रेरितों का पहला आश्चर्य कर्म था। This miracle was performed not with silver and gold, ये आश्चर्य क्रम सोने और चांदी के साथ नहीं किया गया, but through the power of the name of Jesus Christ. परंतु यीशु मसीह के नाम की शक्ति के द्वारा। What do you think God is telling us today in this story? आप क्या सोचते हैं परमेश्वर इस कहानी में आज हमें क्या बता रहा है? Do not trust in your silver and gold. अपने सोने और चांदी पर भरोसा न रखो। There's nothing wrong with silver and gold, सोना और चांदी कोई बुरी बात नहीं है, but don't put your trust in them. परंतु इन पर भरोसा न रखो। Don't put your trust in your intellect. अपनी बुद्धि पर भरोसा न रखो। There is nothing wrong with your intellect, आपकी बुद्धि से कोई समस्या नहीं है, but don't let that be your source of pride. परंतु इसे अपने घमंड का रास्ता न बनने दीजिए। Don't trust in your family connections. अपने पारिवारिक संबंधों में भरोसा न रखिए। Now there's nothing wrong with your family connections, अब आपके पारिवारिक संबंधों में कोई बुरी बात नहीं है, but they will not get you to heaven. परंतु ये आपको स्वर्ग नहीं पहुंचाएंगे। But simply allow the power of God to work in you and set you free. परंतु बस परमेश्वर की शक्ति को आप में काम करने और आपको स्वतंत्र करने दीजिए। Silver and gold have I none, said Peter. पतरस ने कहा, सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, But in the name of Jesus Christ of Nazareth, get up and walk. परंतु यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल। First, this was the first miracle by the apostles. सबसे पहले ये प्रेरितों के द्वारा पहला आश्चर्यक्रम था, But then there was a message. परंतु फिर एक संदेश था। The miracle is always a servant of the message. आश्चर्यक्रम हमेशा संदेश का दास है। The miracle is always subservient to the message. आश्चर्यक्रम हमेशा संदेश का सहायक है। The miracle is always inferior to the message. आश्चर्यक्रम हमेशा संदेश के अधीन होता है। Why do I say this? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? Because the miracle is temporary, but the message is permanent. क्योंकि आश्चर्यक्रम अस्थायी है परंतु संदेश स्थायी है। The miracle is finite, but the message is eternal. आश्चर्यक्रम सीमित है परंतु संदेश अनंत है। The miracle is for a season, but the message is forever. आश्चर्यक्रम एक समय के लिए है परंतु संदेश सर्वदा के लिए है। Let me explain this some more. मैं उसे थोड़ा और स्पष्ट करता हूँ। When Jesus raised Lazarus from the dead, Lazarus died again. जब यीशु ने लाजर को मुर्दों में से जिलाया तो लाजर बाद में अपने समय पर मर गया, But those who believed because of the miracle were eternally saved. परंतु वो जिन्होंने इस आश्चर्यक्रम को देखकर विश्वास किया वो अनंत काल के लिए बचाए गए। When Peter healed the man born crippled, this man later died. जब पतरस ने इस जन्म के लंगड़े व्यक्ति को चंगा किया तो बाद में अपने समय पर वो मर गया। But the message that Peter preached brought many to Christ, and thus they lived forever. परंतु वो संदेश जो पतरस ने सुनाया बहुत सारे लोगों को मसीह के पास ले आया और इससे वो हमेशा के लिए जीवित हैं। So Peter begins his message by identifying the besetting of sin. तो पतरस अपना संदेश पाप के दुख को पहचान कर प्रारंभ करता है। Any preaching, teaching, witnessing or ministry that ignores the condition of sin हर वो प्रचार, शिक्षा, गवाही या सेवकाई जो पाप की दशा को अनदेखा कर देती है will produce no salvation. कोई उद्धार नहीं लाएगी।
It was because of sin that Jesus died on the cross. पाप को हटाने के लिए ही यीशु ने क्रूस पर अपनी जान दी। To ignore sin would be like putting a bandage over a serious wound. पाप को अनदेखा करना एक बड़े घाव पर छोटी सी पट्टी बांधने जैसा है। When I read the Bible, I find that in all of the preaching, teaching, witnessing, ministering done by the apostles, they identified sin and called it sin. जब मैं वचन पढ़ता हूं तो मैं देखता हूं कि प्रेरितों के द्वारा किए गए सब प्रचार, शिक्षा, गवाही और सेवकाई में उन्होंने पाप को पहचाना और उसे पाप कहा। They insisted that sin must be confessed and repented of. उन्होंने जोर दिया कि पाप को मानना और इससे पश्चाताप करना आवश्यक है। Before salvation takes place, sin must be acknowledged and repented of. उद्धार होने से पहले पाप को मान लेना और इससे पश्चाताप करना आवश्यक है। I want you to look at verses 13 to 15. मैं चाहता हूं कि आप 13 से 15 पदों को देखें। Peter identified their sin. पतरस ने उनके पाप को पहचाना। What was it? ये क्या था? Here's what he said. उसने कहा, The God of Abraham, Isaac, and Jacob, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, the God whom you claim to worship, वो परमेश्वर जिसकी उपासना करने का तुम दावा करते हो, the God who brought your forefathers out of slavery in Egypt, वो परमेश्वर जिसने तुम्हारे बाप दादाओं को मिस्र की दास्ता से निकाला, that same God sent you his promised Messiah. उसी परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के मसीह को भेजा। Just as he told the prophets of old that he would, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने पुराने समय के भविष्यवक्ताओं को बताया था कि वो उसे भेजेगा। this same God sent you his suffering servant that was prophesied in the book of Isaiah. उसी परमेश्वर ने दुख उठाने वाले अपने उस दास को तुम्हारे पास भेजा जिसकी भविष्यवाणी यशायाह की पुस्तक में की गई थी। The same God sent you the life-giving Lord, उसी परमेश्वर ने जीवन देने वाले प्रभु को तुम्हारे पास भेजा, but you crucified him. परंतु तुम लोगों ने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया, You rejected him. परंतु तुमने उसे अस्वीकार कर दिया, You delivered him up to Pontius Pilate. तुमने उसे पिलातुस को पकड़वा दिया, You disowned your only hope for salvation. तुमने उद्धार की अपनी एकमात्र आशा को अस्वीकार कर दिया। You dishonored the one whom God honored. परमेश्वर ने जिसका आदर किया तुमने उसका अनादर किया। But my listening friend, do you know what the irony is here? परंतु मेरे श्रोता मित्र, आप जानते हैं कि यहाँ पर व्यंग्यात्मक बात क्या है? Peter, who is saying all of these things, is the same Peter who denied Jesus 3 times. वो पतरस जो ये सब बातें कह रहा है, ये वही पतरस है जिसने 3 बार यीशु का इनकार किया था। The Peter who disowned Jesus. वही पतरस जिसने यीशु को अस्वीकार कर दिया था। The Peter who disavowed any knowledge of Jesus. वही पतरस जिसने यीशु के बारे में कुछ भी पता होने से इनकार कर दिया था। Some of you may say, is he a hypocrite then? आप में से कुछ शायद कहें तो फिर क्या वो पाखंडी है? How can he condemn people for the same sins that he committed? वो लोगों को उसी पाप के लिए कैसे दोषी ठहरा सकता है जो उसने खुद किए हैं? But my friends, this is the heart of the Christian faith. परंतु मेरे श्रोता मित्रों, ये है मसीह विश्वास का दिल। Whenever I invite you to come to Christ on the air, जब भी मैं कार्यक्रम में आपको मसीह के पास आने का निमंत्रण देता हूँ, when your friends or family members plead with you to repent and receive salvation through Jesus Christ, जब आपके परिवार वाले या मित्र आपसे निवेदन करते हैं कि आप पश्चाताप कर लें और यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त कर लें, we are not doing that because we are superior to you. तो हम सभी ऐसा इसलिए नहीं कर रहे कि हम आपसे श्रेष्ठ हैं। We are not doing that because we are better than you. हम ऐसा इसलिए नहीं कर रहे कि हम आपसे अच्छे हैं। We are doing that because we have experienced firsthand the besetting of sin. हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने पहले पाप का दुख अनुभव किया है। But secondly, परंतु दूसरी बात, because we also experience the benefits of repentance from our sin. क्योंकि हम पाप से पश्चाताप करने के लाभ का भी अनुभव कर रहे हैं। Verses 17 to 19. 17 से 19 पद। Peter said, you acted in ignorance. पतरस कहता है कि तुमने अनजाने में ऐसा किया। What is Peter saying? पतरस क्या कह रहा है? Peter is expressing a well-known division between the sin of omission and the sin of commission. पतरस भूल से किए जाते पाप और जानबूझकर किए जाते पाप के जाने पहचाने अंतर को प्रकट कर रहा है। But here's the important thing, my listening friend. परंतु मेरे श्रोता मित्र, महत्वपूर्ण बात यह है,
whether your sins were committed through omission or commission, चाहे आप भूल से पाप करते हैं या जानबूझकर करते हैं, the consequence is the same. परिणाम एक ही है। Ignorance is no excuse. अनभिज्ञता कोई बहाना नहीं है। Ignorance is no defense. अनभिज्ञता कोई बचाव नहीं है। But when repentance takes place, परंतु जब पश्चाताप कर लिया जाता है, God in His mercy and grace is willing to let the past be the past. तो परमेश्वर अपने अनुग्रह और दया में आपके अतीत को अतीत में ही छोड़ने के लिए तैयार है। He will let the past with all of its sins be wiped out. वो अतीत को इसके सब पापों सहित मिटा डालेगा। Not only that, इतना ही नहीं, but all fears of judgment will be wiped out too. परंतु न्याय का सारा भय भी मिटा दिया जाएगा। Not only that, इतना ही नहीं, but the much needed refreshment for your soul will take place. परंतु आपके प्राण को इसके लिए अति आवश्यक ताजगी भी मिलेगी। The word wiped out in verse 19 19 पद में ये शब्द मिटाए जाएंगे is a picture of wiping ink off a document. एक दस्तावेज पर से स्याही मिटाए जाने की तस्वीर है। Unlike modern ink, the ink used in the ancient world आज की स्याही से अलग प्राचीन संसार में प्रयोग की जाने वाली स्याही में had no acid content. कोई तेजाबी मिश्रण नहीं होता था। Consequently, it did not bite into the papyrus परिणाम स्वरूप ये कागज के अंदर समाती नहीं थी and could easily be wiped away without a trace by a damp sponge. और थोड़ी सी गीली रुई से बिना कोई धब्बा पड़े आराम से मिटाई जा सकती थी। I'm going to tell you something that's very, very exciting. मैं आपको एक बहुत ही खुशी की बात बताने वाला हूं। When you repent of your sin, जब आप अपने पाप से पश्चाताप करते हैं, God does not merely cross out the believer's sin, तो परमेश्वर विश्वासी के पुराने पापों पर केवल एक लकीर ही नहीं मारता है, but He wipes out away completely. परंतु वो उन्हें पूरी तरह से मिटा देता है। They are gone beyond any possible trace. वो ढूंढे जाने की किसी भी संभावना से कहीं दूर चले जाते हैं। They are gone beyond any possible recall. वो स्मरण किए जाने की किसी भी संभावना से कहीं दूर कर दिए जाते हैं। They have disappeared with no chance of being found. वो गायब कर दिए जाते हैं और उनके मिलने की कोई संभावना नहीं रहती। They have vanished without a trace. वो बिना कोई निशान छोड़े मिट जाते हैं। Just like Jesus prayed for those who nailed Him to the cross. बिल्कुल वैसे ही जैसे यीशु ने उसे क्रूस पर चढ़ाने वालों के लिए प्रार्थना की, Father, forgive them, for they know not what they are doing. पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। In the same way, Peter is saying, उसी प्रकार पतरस कह रहा है, even your horrible sin of rejecting and executing your Messiah यहाँ तक कि मसीह को अस्वीकार करने और मार डालने जैसे तुम्हारे भयानक पाप भी can be wiped out when you repent. जब तुम पश्चाताप करो तो मिटाए जा सकते हैं। Let me talk to those of you who are having hard time accepting the forgiveness of God. मैं आप में से उनसे बात करना चाहता हूं जिन्हें परमेश्वर की क्षमा को स्वीकार करना कठिन प्रतीत हो रहा है। Let me talk to those of you who are having a hard time forgiving yourself. मैं आप में से उनसे बात करना चाहता हूं जिन्हें खुद को क्षमा करना कठिन लग रहा है। If God is willing to forgive those who nailed His Son to a cross, यदि परमेश्वर उन्हें क्षमा करने के लिए तैयार है जिन्होंने उसके पुत्र को क्रूस पर चढ़ाया, don't you think He is willing to forgive you? तो आपको नहीं लगता कि वो आपको भी क्षमा करने के लिए तैयार है? You say, you don't understand. आप कहेंगे आपकी समझ में नहीं आ रहा है। I have committed terrible sins. मैंने बहुत घिनौने पाप किए हैं। I have betrayed the most sacred vows of my marriage. मैंने अपने विवाह की सबसे पवित्र प्रतिज्ञाओं के साथ धोखा किया है। I have abused people. मैंने लोगों को गालियां दी हैं। I have abused my responsibility and the trust of others. मैंने अपनी जिम्मेवारियों और दूसरों के भरोसे का दुरुपयोग किया है। I have embezzled and used monies that don't belong to me. मैंने उस पैसे में हेराफेरी की है और अपने लिए इस्तेमाल किया है जो मेरा नहीं है। My listening friend, listen very carefully. मेरे श्रोता मित्र बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। Whatever the magnitude of your sin, आपके पाप का आकार चाहे जो भी हो, God's grace is greater than all of your sins. परमेश्वर का अनुग्रह आपके सब पापों से बड़ा है। All of us who have faced the besetting of sin हम सब जिन्होंने पाप के दुख का सामना किया है, know the benefits of repentance. पश्चाताप के लाभ जानते हैं। But thirdly, परंतु तीसरी बात,
We also know the blessings of surrender. हम समर्पण की आशीषों को भी जानते हैं। Peter closes his sermon in Acts 3:25 to 26 on a hopeful note. प्रेरितों के काम 3 अध्याय के 25 और 26 पद में पतरस अपना संदेश बहुत आशापूर्ण ढंग से समाप्त करता है। The whole episode begins with the hopelessness of a physical condition. ये पूरी कड़ी बड़ी निराशा और शारीरिक दशा के साथ शुरू होती है And now it concludes with the hope of the blessing of God. और अब ये समाप्त होती है परमेश्वर की आशीष की आशा के साथ। They can experience the fulfillment of God's promise to Abraham. अब वो अब्राहम के साथ किए गए परमेश्वर के वादे का पूरा होना अनुभव कर सकते थे, Namely that through Jesus Christ, अर्थात कि यीशु मसीह के द्वारा all the families of the earth shall be blessed. धरती के सभी घराने आशीष पाएंगे, All the rich blessings of salvation उद्धार की सभी उत्तम आशीषें and all of the covenant promises और वाचा की सभी प्रतिज्ञाएं are all available to you today. सब आज आपके लिए उपलब्ध हैं, Just as they were available to Peter's hearers in Acts chapter 3. बिल्कुल वैसे ही जैसे ये प्रेरितों के काम 3 अध्याय में पतरस के सुनने वालों के लिए उपलब्ध थीं। Regardless of what you have done, छोड़िए जो भी आपने किया है, regardless of the life you have led, कोई बात नहीं जो भी आपने जीवन जिया है, regardless of the guilt you may have been carrying, जो भी दोष आप लेकर घूम रहे हैं, God will bless you when you repent. परमेश्वर आपको आशीषित करेगा जब आप पश्चाताप करेंगे। Repentance is not just feeling sorry. पश्चाताप केवल दुखी महसूस करना नहीं है, Repentance is the deep desire to want to change. पश्चाताप बदलने की चाह की गहरी इच्छा करना है। Our time has run out, हमारा समय समाप्त हो चुका है and it is my hope and prayer that you will repent and turn to the Lord, और ये मेरी प्रार्थना है कि आप पश्चाताप करें और प्रभु की ओर मुड़ें and that you would write and tell us. और फिर लिखकर हमें बताएं। Until next time, I wish you God's richest blessing. अगले समय तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूं।